ڈیفینیشن یا اس کا ایک انٹرو ہم مجھے اور میرے دیکھنے والوں کو بتائیں کہ اسلامک بینکنگ ایکچولی کیا ہے؟ دیکھیے آپ کا سوال تو بہت چھوٹا ہے بٹ اس کا جواب تھوڑا بہت لمبا ہو سکتا ہے، لیکن مختصراً میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اسلامک بینکنگ کا ایک ایسا سسٹم ہے جو پرائمریلی اکنامکلی ٹیکنیکلی بہت ایفیشینٹ ہے، دیٹس ون۔ سیکنڈلی یہ ہے کہ دس از ان لائن جو لوگوں کے عقائد ہیں، مسلمان، میں بھی مسلمان، آپ بھی مسلمان، جو پاکستان بھر کے مسلمان اور دنیا بھر کے مسلمان ہیں، ان کے عقائد کے عین مطابق ہے، اور اس کے علاوہ اٹ از بیسڈ آن ہائر ایتھیکل اسٹینڈرڈس اور سوسائٹی کی رسپانسبلٹیز بھی شولڈر کرتے ہیں۔ سو بیسکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے تین لیگز ہیں، ایک یہ ہے کہ اکنامکلی ایفیشینٹ ہے، دوسرا یہ ہے ان لائن ود ایوری مسلمز بلیف ہے، اور تھرڈ یہ ہے کہ اٹ از مور رسپانسبل ٹورڈز دا سوسائٹیز کے حقوق جو ہیں ہم سب لوگوں پہ اس کے۔ اگر ہم کوئی چیز تھوڑا سا اگر ان ڈیپتھ جائیں تو کیا چیز ایسی ہے جو دوسرے جتنے ہمارے کمرشل بینکس ہیں، کنونشنل بینکنگ ہے، اس سے ڈفرینٹ ہے؟ اگر دونوں کا آپ کمپیریزن کریں تو کون سے بیسک ڈفرینسز ہیں؟ دیکھیے ڈفرینسز دیکھنے کے لیے آپ کامن ڈینومینیٹر پہ آ جائیں تو فیکٹ آف دا میٹر کہ جتنے کنونشنل بینکس یا انٹرسٹ بیسڈ بینکس ہیں وہ بیسکلی کہلاتے تو بینکس ہیں، لیکن ان کے جو بیسک کانٹریکٹس ہوتے ہیں وہ منی لینڈنگ کے ہوتے ہیں۔ اچھا، سود پہ پیسہ دینا اور سود پہ پیسہ لینا، یہ ان کے بیسک کانٹریکٹس ہوتے ہیں۔ اسلامک بینکس ہر کام کرتے ہیں ود ان دا لا ایکسیپٹ منی لینڈنگ، تو ان کے جتنے بھی کانٹریکٹس ہوتے ہیں یا شراکت کے ہوں گے یا پرووائڈنگ کوئی چیزیں آپ کو اس پہ لون پہ دے پائیں گے، اس طرح کے ہوتے ہیں، لیکن منی لینڈنگ کے کوئی کانٹریکٹس نہیں ہوتے۔ پیسہ اس طریقے سے نہیں دیا جاتا۔ پیسہ اس کی ایک ایگزامپل اگر ہم لوگوں کو بتائیں، اگر مجھے کوئی گھر لینا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میں کنونشنل بینکنگ سے لون لینے کے بجائے اسلامک بینکنگ کی مدد لوں، تو اس میں اسلامک بینک میری کیسے مدد کرے گا؟ دیکھیے اس میں ہوتا یہ ہے، کنونشنل بینک سودی بینک تو آپ کو پیسہ دے دے گا، آپ سے سود پہ لیتا رہے گا، آپ لے لیں۔ اسلامک بینکس عمومی طور پہ یہ کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اپنی پارٹنرشپ کر کے ایک گھر کو خرید لیں، اس میں آپ کا بھی شیئر ہو جاتا ہے، اسلامک بینک کا بھی شیئر ہو جاتا ہے۔ پھر ہر شیئر کی ایک پری ڈیٹرمنڈ ویلیو ہوتی ہے، پھر آپ آپ نے اگر گھر لیا ہے تو آپ وہ شیئرز جو بینک کے ہیں پری ڈیٹرمنڈ پرائز کے اوپر بینک سے وقفے سے خریدتے رہتے ہیں، تاکہ پھر ایونچولی آپ کا گھر اپنا ہو جائے۔ اور جب تک آپ چونکہ شراکت دار ہیں اس گھر میں جو آپ نے اسلامک بینک سے لیا ہے، تو اگر آپ اسلامک بینک کا پورشن بھی اس گھر کا استعمال کر رہی ہیں تو اس استعمال کے عوض آپ اسلامک بینک کو اس کا کرایہ دیتے رہتے ہیں، اور جیسے جیسے آپ کا پورشن آف اونرشپ بڑھتا جاتا ہے آپ کا کرایہ کم ہوتا جاتا ہے، ایونچولی گھر آپ کا، کرایہ ختم، دیٹس اٹ۔ اوکے، اور یہ ایزی ہے، فیزیبل ہے؟ کیونکہ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم اتنے یوز ٹو بھی ہو گئے نا ایک ماحول میں کہ ہم انٹرسٹ، ہمیں ہر چیز میں اب سمجھ آنے لگا ہے، کریڈٹ کارڈز میں بھی سمجھ آ گیا تو اس میں بھی سمجھ آ گیا، اس میں بھی جہاں جہاں ہماری بورونگ رہتی ہے وہاں پر ہمیں اب انٹرسٹ ریٹ ہم نے ڈائجسٹ کر لیا کہ اوکے فائن اتنا لگ جاتا ہے اور اتنے پیسے دینے پڑتے ہیں۔ اب رینٹ کی جو آپ نے بات کی تو شاید ذہنوں میں خیال ہے کہ کتنا رینٹ ہوگا، کیا ایریا کے مناسبت سے ہوگا، پیسوں کی مناسبت سے ہوگا؟ یہ اس کو مشارکہ کہتے ہیں؟ جی ہاں، مشارکہ۔ تو مشارکہ ہمارے لیے آیا فیزیبل ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کے بارے میں بتائیے۔ دیکھیے جو بھی بینک آپ کو جو بھی پروڈکٹ دیتا ہے اسلامک بینک، وہ آپ کی تمام ضروریات کو مد نظر رکھ کے دیتا ہے۔ سو آپ یہ اگر تصور رکھتے ہیں کہ اسلامک بینک میں جائیں گے تو آپ کو کوئی زیادہ مشکل پیش آئے گی یا یو ول بی ایٹ اے ڈس ایڈوانٹیج، دیٹس ناٹ ٹرو ایٹ آل۔ اچھا، آپ کو کم از کم اتنی ہی سہولت ملے گی جتنی آپ کو کنونشنل میں ملتی ہے یا شاید اس سے زیادہ، دیٹس ون۔ لیکن جو آپ بات کر رہی ہیں اس کا جو بیک گراؤنڈ میری سمجھ میں آتا ہے وہ یہ، آئی ریممبر جب 1991 اور 2 میں موبائل فونز انٹروڈیوس ہوئے تھے تو ایک دو سیٹ تھے، بڑے چنکی سے ہوتے تھے، اور کیا، اور ان کو بڑی اس میں ریسٹرکشنز ہوتی تھی، ایک دو شہروں میں استعمال ہوتے تھے، اینڈ پیپل یوز ٹو ونڈر کہ یار یہ کیسا ہوگا، کیسا استعمال کروں گا، کیا بل آئے گا، اینڈ آل دوز اپریہینشن۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ موبائل فون کے بغیر تو کسی کا بھی گزارا نہیں ہے۔ اگین بیکاز یہ نیا شروع ہوا ہے سسٹم، ونس پیپل گیٹ یوز ٹو اٹ اینڈ وین دے یوز اٹ تو آفٹر سم ٹائم ان مائی اوپینین وہ وہی ہو جائے گا۔ ان فیکٹ لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مشتاق بھائی، کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شکر اللہ کا، الحمدللہ باجی، آپ سنائیں۔ اللہ کا شکر، فرمائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟
मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस्लामिक बैंक को फ़रोग़ देने के लिए क्या क्या इक़दाम करने चाहिए, और ये बहुत अच्छी बात है कि हम इस्लामी तरीके से चल रहे हैं। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो लोग बोली वाली कमेटी डालते हैं, इनसे ये मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, वो लाख की कमेटी होती है, वो 50,000 में ले लेते हैं मजबूर होकर अपनी ज़रूरत के लिए। क्या आपको कर्जा वगैरह भी देते हैं बगैर सूद के? ये मुझे आपको इनका सवाल समझ आ गया, बगैर सूद के ही कर्जा देते हैं वैसे ये, लेकिन इसको मजीद एक्सप्लेन ऑन एयर कर देंगे, ठीक है? वो भी बता देना जो मैंने कमेटी वाला सवाल किया है। कमेटी वाला सवाल आपको समझ आ गया? कमेटी थोड़ा बहुत जो मुझे समझ आया उसका मैं अच्छा, जवाब देने उसका की जवाब कोशिश दे देंगे भाई। ये कमेटी वाला सवाल तो आपने बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आप अपनी एग्जाम्पल से स्टार्ट कीजिए, वैसे जो आप एग्जाम्पल देने वाले थे उससे हो सकता है। सवाल ही इतना कॉम्प्लिकेटेड है और आप कोई बात नहीं, पहले ही मैं धमका यहाँ दिया था पर कि हूँ, आप याद मैं जो रखिएगा तो मुझे इन्विजिलेटर याद है ना नहीं। इस एग्जाम की, वो बिल्कुल आपको चीटिंग कराने के लिए तैयार है, तो यू डोंट वरी। सही है, ये सवाल का जवाब तो हम देंगे, मगर पहले आप एग्जाम्पल बता दीजिए। मैं क्या एग्जांपल दे रहा था आपको? वो आपको ही cheating पता करवाए था ना। वो तो नहीं, आपको खुद बेसिकली मैं पता है। आपसे ये कहता कि इस्लामिक बैंकिंग के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो आपको चीटिंग नहीं करने देते। Okay. और मैं आपको एग्जांपल ये देने वाला था, आई डोंट नो इफ इट इज एन अप्रोप्रिएट एग्जांपल। हाँ हाँ आई वाज गोइंग टू से गॉड फॉरबिड, अगर मैंने बैंकिंग के निज़ाम में मैंने नियत की है कि मुझे बेईमानी करनी है, हाँ तो मेरा बेटर चांस ये है कि मैं सूदी बैंकारी निज़ाम में जाऊं, वहाँ मैं बेहतर तरीके से बेईमानी करके निकल सकता हूँ। अच्छा अगर मैं इस्लामिक बैंकिंग में जाऊंगा तो मैं बेईमानी कर नहीं पाऊंगा। अच्छा तो क्योंकि इसके जो बेसिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो होते इस किस्म के हैं। सही सो बाय नेचर ये जो है ये बैंक इस्लामिक बैंकिंग मिसयूज़ बहुत कम होगी। कम होता है। हाँ। अच्छा, वैसे आपने बड़े रूल्स, इसके रेगुलेशंस, तमाम चीज़ें बनाई हैं, तो आपको तो काफ़ी चीज़ें पता होंगी, कहाँ से रूल बना था, इसका जोड़ तोड़ क्या है, तो कुछ आइडिया है इसका? कभी कोशिश की कि इसको थोड़ा मोल्ड कर लेते हैं अपने हिसाब से? तो देखिए बात चीटिंग ये नहीं, है, लेकिन ये है कि चीज़ों के हिसाब से, नहीं, एनवायरनमेंट के हिसाब से। बात ये है कि मुझे आइडिया तो बहुत सी चीज़ों का है, हाँ। बट एज अ गुड मुस्लिम मैं वो आइडियाज़ की हद तक ही रखता सही। हूँ। कॉलर हैं इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हन्नान, अब्दुल हन्नान, यस, हन्नान हासिलपुर से। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। सुबह सुबह आपको खुशामदीद बोलूंगा। थैंक यू। और सुबह सुबह जब आपके सेट के ऊपर बारिश होती हुई देखी तो बड़ा ही अच्छा लगा। मेरे पास भी बारिश नहीं हो रही है, अच्छा। लेकिन इस वक्त मौसम बहुत अच्छा है, बहुत सारे बादल आए हुए हैं। ये आपकी दुआ आज कबूल हो गई है। अच्छा, मेरी दुआ कबूल हो गई है, गुड। हाँ जी। अच्छा, और परवेज साहब को बड़े ही अदब से अस्सलाम वालेकुम बोलूंगा। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है। अल्लाह का करम। आपसे मेरा ये सवाल है कि इस्लामिक बैंकिंग जो है अपने पाकिस्तान में इतनी फरोग नहीं पा रही है, और जितना हम दूसरे बैंकों को इतना मोटिवेट करते हैं, उनकी स्कीमों को करते हैं, उनके कामों को करते हैं, हम इस्लामिक कंट्री होने के नाते हम इसकी तरफ इतना रजू नहीं कर पा रहे हैं ना। अच्छा, मुझे एक बात बताएं अब्दुल हन्नान, आपके हासिलपुर में इस्लामिक बैंक्स हैं? एक खुला है और वो भी अभी मुकम्मल तौर पे ओपन नहीं हुआ। उसकी भी रिक्वेस्ट करनी है कि सर उसको नोटिस करें उसका भी, और ब्रांचेस लाएं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है। लोग बहुत चाहते हैं कि यहाँ पे इस्लामिक जो है ना वो बैंक होने चाहिए। तो फिर आप लोग उसमें अकाउंट खुलवाएंगे जैसे इस्लामिक बैंक अच्छी तरह प्रॉपर काम करने लगेगा? हन्नान अपना अकाउंट खुलवाएगा जी। और बताएं। ओह, सही है, ठीक है अब्दुल हन्नान, ठीक है। थैंक यू सो मच। ये सवाल हम इनसे वैसे पूछेंगे कि इसके फरोग के लिए क्या करना है। शॉर्ट करता हूँ क्योंकि फिर आप कहती हैं कि टाइम ज्यादा आप हाँ, समझ गए ना आप, थैंक और गॉड। मैं रोज इसलिए कॉल नहीं करता हूँ कि दूसरे लोगों को भी मौका मिले। ओहो हो, इतने दयालु हो गए आप तो, बैंक अकाउंट होना ही चाहिए आपका। थैंक यू सो मच। गॉड थैंक यू, अल्लाह हाफिज। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी, कौन है हमारे साथ? मुबशर लतीफ़ अर्ज़ कर रहा हूँ जी, जी, कहाँ से? लाहौर से। जी, फरमाइए, क्या कहना चाहते हैं? इससे ये था कि वो परवेज साहब से पूछना था ये कि आया कि जो जिनका अकाउंट नहीं है, ये भी अगर उनके पास अकाउंट अगर वो खुलवाना चाहती हैं तो क्या उनके लिए भी कुछ रूल है, यानी कि उनके पास इतनी अमाउंट नहीं है? अच्छा, अमाउंट है, रूल क्या है अकाउंट खुलवाने के इस्लामिक बैंक में, है ना? रूल नहीं, उससे पूछा है कि अगर पढ़ते मेरे पास 50,000 रुपये और मैं अकाउंट ओपन करवाना चाहता हूँ, हाँ, तो वो आया क्या मुझे उस पर कर्जे के लिए या मैं अपने घर के लिए अप्लाई कर सकता हूँ कि मुझे उनके क्या रूल होंगे? अच्छा, हमें ये समझ आई आपकी बात कि आपके पास अगर 50,000 हैं हाँ और जी। आप बैंक में अकाउंट खुलवा लेते हैं जी। और उसके बाद आप लोन के लिए या इनकी मदद के लिए अप्लाई करते हैं, तो क्या आपको मदद मिल सकेगी? हाँ जी। है ना?
चलिए ठीक है। अगर वो मदद मिलेगी कितनी, अगर वो कहते हैं हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स तो ऐड होंगे, बस इतना बहुत। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब पहले जवाब दे देते हैं क्योंकि आज के प्रोग्राम में तमाम चीज़ें मैं नोट कर रही हूँ, और वरना मैं ये क्यू कार्ड थमा देती हूँ अपने गेस्ट आपको को। बहुत मुझे चीटिंग करवानी पड़ेगी, क्योंकि चीटिंग करानी बहुत पड़ेगी, questions- कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अपनी जुरिसडिक्शन में रहते हुए हम लोग चीटिंग करा सकते हैं। हाँ अच्छा, पहले तो ये वो कमेटी वाली बात आपको समझ अच्छा आ देखिए, गई थी? कमेटी वाली बात के अपार्ट फ्रॉम हाँ। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा एक कॉमन सेंस की भी बात है। और कॉमन सेंस में जो उन्होंने बेसिकली ये कहा था कि 1 लाख की है वो मजबूरी हो जाती है लोगों सही। की, तो वो 50,000 की, हाँ। तो वो ये तो एक्सप्लॉयटेशन है इन प्रिंसिपल, और एक्सप्लॉयटेशन की तो इजाज़त किसी मज़हब में, किसी सोसाइटी में नहीं है। हाँ ऑन दी अदर हैंड, अब ये मैं थोड़ा अपना आपको व्यू दे दूँ, एक्सप्लॉयटेशन और मार्केट फोर्सेस में भी बड़ा कभी कभी बारीक फ़र्क रह जाता है। अच्छा। इट्स क्वेश्चन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अगर किसी साहब को किसी चीज़ की ज़रूरत है और उनके पास कोई कीमती असासा है, तो जब वो ज़रूरत में होंगे तो उस असासे की कीमत कुछ और मिलेगी। सही। अगर वो साहिब ज़रूरत नहीं है और हाँ। अपने वक्त से बेचना चाहते हैं तो उसकी असासे की सही। कीमत दूसरी होती है। तो ठीक। दीज आर मार्केट फोर्सेस। हाँ। सो दिस मे बी समवेयर इन बिटवीन, लेकिन अगर कोई एक्सप्लॉयट करके ले रहा है तो इट इज़ रियली नॉट ये गलत है। अगर आपसे वादा किया गया है, जो आम कमेटियां डलती हैं, अगर उसकी बात की जाए तो जितने पैसे प्रॉमिस किए गए हैं उतने ही मिलने चाहिए। ये नहीं, लाख की मेरा 50,000 इनकी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि कमेटी वाले खुद नहीं, बट समबडी एल्स विल बाय हिज कमेटी ऑफ हिम, अच्छा 1 लाख के बजाय 50,000 की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तो इट्स अ फ्री विल कॉन्ट्रैक्ट है, तो आई मीन फ्री विल कॉन्ट्रैक्ट तो फ्री विल कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, और अगर एक्सप्लॉयटेशन है तो वो हर तरह से ठीक गलत है। हमारे साथ एक कॉलर भी हैं, उनको हम पहले ले लेते हैं क्योंकि वो सऊदी अरब से कॉल कर रहे हैं। उसके बाद ये जो इन्होंने बात की थी कि 50,000 पे मैं अकाउंट खुलवाऊँ और उसके बाद अगर मुझे कोई चीज़ लेनी है तो लोन या मुशारका मुदारबा इस तरह की कोई भी चीज़ हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? जी मैं